কেন একটা হসপিটালে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মানুষ ওখানে রেনোভেশনটা অ্যালাউ করছে ওটা আমি বুঝতে পারছি না। কে পুরো হেলথ মিনিস্ট্রিতে এই ঘটনার পরে ওখানে একটা সিনিয়র অফিসার্সের টিমটা দায়িত্ব দিয়ে কি এই পুরো ঘটনার হওয়ার পরে এই হাসপাতালে পুলিশের সাথে একটু সাপোর্ট করে এভিডেন্স কি আছে ওটা কালেক্ট করানোর সুযোগ করার বদলে ওখানে পুরো এভিডেন্সের সাথে ট্যাম্পারিং এর যে ব্যবস্থাটা হয়েছে এটার জন্য হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কাকে এরা রেসপন্সিবল ধরেছে। বারবার করে বলছেন যে বাংলাদেশ ঘটনার চেষ্টা হচ্ছে, উনি বারবার করে বলছেন এখানে অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টি রাজনীতি করছেন, উনি এটাও বলছেন। আমি আবার বলছি দিদি, তেরা রেপ মেরা রেপ এই পলিটিক্সটা এখন শেষ করতে হবে। ওই মহিলা কাকে ভোট দিয়েছে ওটা তো আমরা জানি না, ওর পরিবার কাকে সমর্থন দিয়েছে ওটা তো আমরা জানি না, কে কাকে সমর্থন দিচ্ছে ওটা দেখে আমরা জাস্টিস ডিমান্ড করবো। সেদিন রাতে যে দুষ্কৃতীরা এসেছিল হামলা করতে, মমতা ব্যানার্জি বলছে ওটা সিপিএম বিজেপি বাম এবং বিজেপি কর্মীরা। আমি আবার বলছি, যদি লেফট এত পছন্দ নেই দিদিকে তাহলে কেন ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সে বসে আছেন? কেন লেফটের গুন্ডা তৃণমূলের এখন নেতা হয়েছে? বার করে দিন, ছেড়ে দিন অ্যালায়েন্সটা। মুখে ইনজুরি আছে, চেস্টে ইনজুরি আছে, পেটে মেরেছে, চোখে থেকে রক্ত বেরোচ্ছে, ভাজাইনা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে, মেয়েটি মারা গেছে। ও যখন এই ঘটনাটা ঘটছিল নিশ্চয়ই কেঁদেছে, চেঁচিয়েছে, হাসপাতালে শোনার জন্য কেউ ছিল না। কি একটি মানুষ মেয়েটার মুখটাও বন্ধ করছে, পাও ভাঙছে, হাতও ভাঙছে, রেপও করছে, চোখটাও ভাঙছে, ভাজাইনা থেকে ওকে পুরো ব্রুটালাইজ করছে। এটা কি একটা মানুষের জন্য সম্ভব? যারা প্রোটেস্ট করছে ওদের উপরে হামলা হচ্ছে, আর রেপিস্ট আরামসে রেপ করার পরে পালিয়ে যাচ্ছে। আজ প্রত্যেকটা মানুষকে জানাচ্ছি, আপনাদের কি ধর্ম কি পলিটিক্স এটা আমি জানি না, কিন্তু আমাদের সবাইয়ের কাজ কি আমরা একজুট হয়ে ওই পরিবারের জন্য, ওর মেয়ের জন্য জাস্টিসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকি। কলকাতা পুলিশে কোন পুলিশ কর্মী ওই মহিলার মা বাবাকে ফোন করে বলেছে কি সুইসাইড? কে ডিসিশন নিয়েছিল, কে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিল, ও অফিসারের বিরুদ্ধে স্টেট গভর্নমেন্ট কি অ্যাকশন নিয়েছে? কেন কলকাতা পুলিশ 3 আওয়ার্স মা বাবাকে মেয়ের বডিটা দেখতে দিল না? এই সব ঘটনাটা আমি মিডিয়া থেকে জানতে পেরেছি। ওই ভিকটিমের বডিতে 150 mg সিমেন ছিল। একটি রেপিস্ট কি মাল্টিপল রেপিস্ট? যদি গ্যাং রেপের ঘটনা, তাহলে কলকাতা পুলিশ ইনভেস্টিগেশনে কি করেছে, কি আরো যদি পারপেট্রেটার্স আছে ওদেরকে ধরা যায়। একটি পুরো মব একজুট হয়েছে প্রোটেস্টার্স এর উপরে হামলা করার জন্য। মিডিয়া আমাকে জানিয়েছে কি মব যখন জমা হয়েছে ওদের হাতে লাঠি ছিল, পাথর ছিল, ওদেরকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া ছিল কি 3 তলায় গিয়ে ভাঙচুর করতে হবে। মবকে ইনস্ট্রাকশন কে দিয়েছে? মবকে কলকাতা শহরে একজুট হওয়ার জন্য রাত্রিরে কে পারমিশন দিয়েছে? স্টেটের ইন্টেলিজেন্স কি করছিল? আজ অব্দি কলকাতা পুলিশের ওই কর্মীদের বিরুদ্ধে স্টেটের গভর্নমেন্ট কি অ্যাকশন নিয়েছে? এক্ষুনি মিডিয়াতে জানতে পেরেছি কি কমিশনার অফ পুলিশ বলেছেন কি এই ঘটনাটা ওনার ফেলিয়ার। যখন কমিশনার পুলিশ নিজে বলছেন কি অ্যাসেস করার মধ্যে উনি ফেল হচ্ছেন, तो चीफ मिनिस्टर बेंगल कमिश्नर विरुद्धे की एक्शन नीचे। एक महिला अस्पताल में काम करते हुए 36 घंटे की ड्यूटी के बाद इस उम्मीद के साथ कि 2 पल आराम कर पाएगी,
अपने ही हॉस्पिटल में रेप का शिकार होती है, उस महिला की हत्या होती है। कुछ सवाल हैं जो चुभते हैं, जो उठने चाहिए। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक उस महिला के मृत शरीर से, आंखों से, वजाइना से खून बह रहा था। उसकी छाती पर वार हुआ था, पेट पर वार हुआ था, टांगों पर वार हुआ था, दोनों हाथों के नाखून टूटे पाए गए। निश्चित रूप से जब उसका बलात्कार हो रहा था, वो महिला अत्याचार से जूझ रही थी। सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने उस फ्लोर पर उस महिला के चिल्लाने की आवाज को नहीं सुना? मीडिया की रिपोर्ट्स के अंतर्गत यह भी जानने में आया है कि 150 mg सीमन उस महिला में पाया गया। क्या ये एक रेपिस्ट का काम है? क्या ये संभव था कि वो व्यक्ति उस महिला को रेप भी कर रहा था, टांगे भी तोड़ रहा था, हाथ भी तोड़ रहा था, आंखें फोड़ रहा था, छाती पे मार रहा था, पेट पे मार रहा था, वो महिला चिल्ला रही थी और ना कोई सुन पाया, और ये सारा कृत्य उस एक रेपिस्ट ने अकेले किया? वो कौन है जिसकी वजह से अस्पताल में वो रेपिस्ट आश्वस्त था कि वो रेप करने के बाद घर लौट सकता है? वो कौन है जिसने इतने जघन्य अपराध के बाद भी अस्पताल के उसी फ्लोर पर रेनोवेशन जारी रखा? क्राइम सीन कितना बड़ा है, अस्पताल में ये किसने डिसीजन लिया? वो कौन है पुलिस में जिसने इस महिला के माता पिता को फोन कर कर ये कहा कि लड़की ने आत्महत्या की है? उस ऑफिसर के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? उस ऑफिसर को किसने निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि वो लड़की के माता पिता को ये कहें कि सुसाइड हुआ है? वो ऑफिसर और उसका अगर सुपीरियर ऑफिसर है तो वो इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, और अगर किसी के इशारे पर पहुंचे तो वो व्यक्ति कौन है? सवाल ये भी उठता है कि रेपिस्ट निश्चिंत है, लेकिन प्रोटेस्टर्स पर मॉब आकर हमला करती है। यह कैसे संभव है कि गुंडों की एक फौज इकट्ठी होती है शहर में और पुलिस को पता तक नहीं चलता? ये कैसे संभव है कि गुंडे आकर, मॉब आकर अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं और मीडिया की रिपोर्ट ये कहती है उन चीजों के साथ तोड़फोड़ करते हैं जो शायद एविडेंस का हिस्सा है? आज मैं सबसे गुजारिश करती हूं, सबसे निवेदन करती हूं, हम में से कई हैं जो मीडिया में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, साधारण नागरिक का जीवन जी रहे हैं। निर्भया के निर्मम कांड के बाद हम सब हिंदुस्तानियों ने आवाज उठाई थी। कानून में भी बदलाव लाया गया, कानून को सख्त किया गया। जुडिशरी में आज महिला के ऊपर हुए अत्याचारों के केस कितने समय से लंबित हैं, इस वक्त मैं उस पर चर्चा नहीं कर रही। जो प्रोटेस्टर्स इकट्ठे हुए कलकत्ता शहर में, वो शायद एक दूसरे को ना जानते हैं, ना कभी किसी ने किसी से एक दूसरे का धर्म पूछा, ना रीजन पूछा, ना जाति पूछी, ना वोट प्रेफरेंस पूछा। विषय है कि उस लड़की को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आज हर उस प्रोटेस्टर से जो सड़कों पर उतरा है इस महिला को न्याय दिलाने के लिए,
उनसे कहना चाहती हूँ, पश्चिम बंगाल के हर उस नागरिक के साथ जो इंसाफ की तलाश में है, पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है। लेकिन हमें सवालों पर वापस ध्यान केंद्रित करना है। एक लड़की का बलात्कार होता है अपने ही अस्पताल में, वो चिल्लाई तो किसी ने अस्पताल में सुना नहीं। उसकी टांगे तोड़ी गई, पेल्विक रीजन तोड़ा गया, हाथ तोड़े गए, नाखून उखाड़े गए, छाती पर मारा गया, पेट पर मारा गया, आंखें फोड़ी गई, वजाइना से ब्लीड कर रही थी, आंखों से ब्लीड कर रही थी, और ये सब एक रेपिस्ट ने किया। सवाल कई हैं, जवाब का इंतजार जनता को है। मैम, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ देर पहले ही उन्होंने भी एक प्रोटेस्ट रैली मार्च किया है, उसमें वो कह रहे हैं कि जो मुझे पता चला कि आरजीकर में जाकर सीपीएम और भाजपा ने तोड़फोड़ की है 14 तारीख को। मैं दोबारा कहती हूँ, तेरा रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें ममता दी। क्या अब लड़की के बलात्कार के लिए, उसके इंसाफ के लिए हिंदुस्तान की जनता तभी आवाज उठाएगी उस लड़की की और उस प्रदेश की पॉलिटिक्स को देखकर? और अगर ममता जी को लेफ्ट विंग से इतनी ही परेशानी है तो इंडिया अलायंस छोड़ दें। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।